Hello everyone. This audio is going to be the second part of your first chapter, French Revolution. Till now, we have studied that what were the economic causes, social causes. We've gone through a lot. Now, I have told you that there are some intellectuals who came into the picture. So, in your book, there are three names which are majorly mentioned. So there are majorly three intellectuals, three philosophers are mentioned in your book. First is John Locke, second is Rousseau, and third is Montesquieu. So generally, they have given a very unique, concept of life and society. मेजरली इनके जो आइडिया थे वो बहुत इंस्पायरिंग थे, बहुत मोटिवेशनल थे. सो डेफिनेटली द पीपल हु वर नाउ दे हैव मेड देमसेल्फ मोर एजुकेटेड एंड मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी. ये बहुत इंस्पायर कर रहे थे. ये जो फिलोसफर्स थे, इनकी जो फिलोसफी ऑफ लाइफ थी, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही थी. सो फर्स्ट विल गो विद जॉन लॉक्स. John Locke, actually, he has written one book which was Two Treatises of Government and refuted the doctrine of the divine and absolute rights of the monarch. He emphasized that no group in the society should be privileged by birth, and merit must be the basis of a person's social position. It's very clear, self explanatory, that his motive was to discriminate or to distinguish between the privileged and नॉन प्रिविलेज सोसाइटी. इनका मानना क्या था? प्रिविलेज शुड नॉट बी बेस्ड ऑन योर बर्थ, कि आप किस फैमिली में आपका बर्थ हुआ है. द मेरिट हैज़ टू बी द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग प्रिविलेज्ड और नॉट. तो ये इनका कॉन्सेप्ट था कि किसी को भी प्रिविलेज उसके बर्थ के हिसाब से नहीं, उसके बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग नहीं, उसके बर्थ हाउस के अकॉर्डिंग नहीं, बट मेरिट शुड बी दैट पैरामीटर to being privileged. Now, Montesquieu, he has written a book, Spirit of Laws, and he very strongly and very openly attacked the absolute monarchy of France. He advocated that constitutional monarchy and uh, the constitutional monarchy and proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. इनका क्या पॉइंट था? He was a person who opposed the monarchy. He said that the king should not rule always. The power has to be delegated to the other chambers. The power has to be delegated to the other people also. He was advocating to make a very uniform and very strong setup of government. He advocated that the legislative and the executive and the judiciary has to be introduced to make the whole France functionality वेरी इन अ गुड मैनर. ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि भाई जो राजा है हमेशा जो है वो शासन राजा ही नहीं करेगा. जो गवर्नमेंट है उसका फेस चेंज होना चाहिए, उसका फिगर चेंज होना चाहिए. और अब इनका मानना ये था कि लेजिस्लेटिव्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए. नेक्स्ट हम आते हैं रूजो पे. रूजो ने ये कहा था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मोर और लेस इनका भी जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि एवरी पर्सन इज़ अ फ्री सोल. No one has a right to capture someone or to impose their own rules and regulations. इनका ऐसा मानना था कि हर एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसके अपने अधिकार होने चाहिए, उसका अपना लाइफ जीने का तरीका होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के व्यक्ति को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति के लाइफ में इंटरफेयर करे या फिर उन्हें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कंपेल करे जीने के लिए. So, what was happening? जब see, the French society, as I've told you, was distributed in three categories: clergy, nobility, and the third state जिसको हम कहते हैं. और ये जो थर्ड स्टेट था ये बहुत ही सप्रेस्ड सेक्शन था फ्रांस सोसाइटी का. लेकिन अब क्या हुआ? आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ ग्रेजुअल चेंज, दिस थर्ड सोसाइटी has tried to make themselves more effective, more advanced and more intelligent in terms of getting education, and they've expanded their business overseas also. अब क्या हुआ कि ये जो थर्ड स्टेट में लोग हुआ करते थे, पहले ये क्या थे? पहले ये घरों में काम कर रहे होते थे, या फिर मजदूर वर्ग हुआ करता था, या छोटे व्यापारी होते थे. अब ये जो व्यापारी थे, इन लोगों ने क्या किया? अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया ओवरसीज़ में, दूसरे देशों में जा कर के इन्होंने इसको स्टार्ट किया.
After expanding the business, definitely when the business expands, it brings a lot of prosperity and money too. ठीक है, तो अभी तक में क्या था कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, अब नाउ दे हैव अ मनी टू स्पेंड ऑन एजुकेशन, टू स्पेंड ऑन बीइंग इंटेलेक्चुअल, बीइंग स्पिरिचुअल. तो जो शिक्षा का अभाव था, जहाँ पे शिक्षा नहीं थी, जहाँ पे पैसे नहीं थे, अब वो जो शॉर्टेज थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी. अब लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने लगे. तो ये वही पीरियड था जब ये आपके तीनों जो फिलोसफर्स थे, ये सोसाइटी में आए और इनका अपना इन्फ्लुएंस होता गया. तो कैसे ये जो, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा वहाँ पे फ्रांस में मोनार्की थी. जब मोनार्की होती है तो नोबडी वांट्स टू सप्रेस हिज ओन पावर. तो वैसे ही जो राजा होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि उनकी जो प्रजा है वो कहीं से भी एजुकेटेड हो, या वो कहीं से भी उसमें ये टेंडेंसी आए टू रिवॉल्ट, या वो टेंडेंसी आए कि वो राजा के जो भी डिसीजंस हैं उसको बॉयकॉट करें. तो इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मीडिया अलाउ नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था. लोगों के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी वो बहुत लिमिटेड थी. लेकिन इस समय तक जब ये फ़िलासफ़र्स इंट्रोड्यूस हुए सोसाइटी में, इस समय तक लोग कॉफ़ी हाउसेस में या फिर सेलों में दे यूज्ड टू गैदर एंड दे यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट, एंड दिस डिस्कशन हैज़ ब्रॉट अ मेजर चेंज in their mindset. These were the places where these philosophers were actually talking about their philosophy. They were trying to make people understand that what is the lacunas which they are facing in France, और किस चीज़ में बदलाव आना चाहिए. ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि इन फिलोसफर्स का इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे कैसा रहा. नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसमें क्या हुआ, आई हैव टोल्ड यू इन अ प्रीवियस वीडियो, अगर आप रिकॉल करें, कि फ्रांस जो है वो अमेरिका को फ्री करना चाहता था ब्रिटेन से. जिसमें क्या था कि फ्रांस की जो आर्मी थी दैट वाज प्लेस्ड इन अमेरिका एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन. वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो आर्मी थी, जो आर्मी के लोग थे, दे हैव रियलाइज्ड कि अमेरिकन टेंडेंसी इज़ समथिंग डिफरेंट. दे वांट टू बी फ्री, दे वांट टू बी डेमोक्रेटिक, दे डोंट वांट टू वर्क अंडर समवंस रूल. तो जो आर्मी थी उसको भी ये चीज़ अंडरस्टैंड होना शुरू हो गई कि सी, वी आर द पीपल. हम हमारे फ्रांस में कैसे है, हम मोनार्क में हैं, अभी हमारे ऊपर इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस लगे हुए हैं, और अमेरिकन पीपल जो हैं नाउ, अभी तो वो ब्रिटेन के अंडर में हैं, बट दे वांट टू गेट फ्री फ्रॉम ब्रिटेन, एंड द मोमेंट दे विल गेट फ्री, दे वांट अ वेरी फ्री सोसाइटी जिसपे किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो ये एक इम्पैक्ट जो वहाँ पे फ्रेंच लोग गए थे, उनको ये चीज़ समझ में आई कि भाई ये जो सिचुएशन है ये हमारे साथ भी अच्छा नहीं हो रहा है. ठीक है, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि जैसे इसके बाद एक टॉपिक आपका आता है द फेमाइन ऑफ 1788 एंड 1789, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में दैट दिस वाज द पीरियड जब सीवियर कोल्ड था, जब द वेदर वाज वेरी सीवियर, वेरी इंटेंस, एंड क्रॉप फेलियर हुआ, जिसकी वजह से फूड ग्रेन सप्लाई, फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया. पीपल हैड नो मनी टू स्पेंड ऑन. अब आप बोलेंगे कि भाई प्राइजेस बढ़ गए थे तो ठीक है, वो ज़्यादा प्राइजेस पे people can purchase the food, but the point is, yes, prices were raised, but according to the prices the wages were not raised of the people. मतलब आपका सामान का जो है वो रेट बढ़ा, लेकिन जो सैलरी थी वो लोगों की, जो पैसे वो ले रहे थे, वो पैसे अभी भी उतने ही कम हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. इसी दौरान फ्रांस में एक और चीज़ हुई जिसको कहा जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस. सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है, ये सबसिस्टेंस का मतलब द बेसिक थिंग विच इज़ वेरी बेसिक. ह्यूमन नीड क्या है, फूड है, शेल्टर है, क्लोथ है, ये इसकी बेसिक नीड है. दैट मीन्स कि जो ह्यूमंस चाहते हैं उनके पास लाविश लाइफ एक अलग चीज़ हो गई. उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, खाना, कपड़ा और रहने के लिए घर, ये उनकी नीड है, इसका क्राइसिस होने लगा. अब पैसे जो है फ्रांस के पास ऑलरेडी वो पैनिश हो चुके थे, जो रॉयल ट्रेजर था दैट वाज ऑल एम्प्टी. द पीपल वर फेसिंग विद लॉट ऑफ इश्यूज. इसी बीच में द किंग हैज़ थॉट ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्स. तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, जो किंग थे उन्होंने क्या सोचा कि लेट्स इंक्रीज द टैक्स ऑन द थर्ड स्टेट टू गेन मोर मनी.
राइट. बट दिस वाज द टाइम जबकि टैक्स को बढ़ाने के लिए द किंग हैज़ टू कॉल द स्टेट असेंबली, और जनरल असेंबली उनको बुलानी होती थी जिसमें कि मिनिस्टर्स हुआ करते थे, द पीपल फ्रॉम द क्लर्जी सेक्शन, पीपल फ्रॉम द नोबिलिटी, दे वर सिटिंग टुगेदर एंड दे वर मेकिंग अ रूल्स कि टैक्स बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए. तो हुआ ये कि इसी में जो है वो आपका जो क्लर्जीज थे, जो नॉबल्स थे, और जो थर्ड स्टेट के भी जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो प्रॉस्परस लोग थे, उन लोगों को बुलाया गया टैक्स इन्हांस करने के लिए. इन बिटवीन ये जब टैक्स इन्हांस करने की बात की गई, इस मीटिंग में 300 people came from clergy section, 300 people came from nobility, and 600 came from third state. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जो वोट काउंट था ऑफ द थर्ड स्टेट, दैट वाज वेरी लेस, एंड दैट वाज द मेजर रीजन टू आउटब्रेक द रेवोल्यूशन. व्हेन द थर्ड स्टेट पीपल, ये जो आपका थर्ड स्टेट था, जो सप्रेस्ड सेक्शन था, उससे जो 600 लोग गए थे, they felt themselves humiliated among all, like in front of everyone they felt humiliated, and they have decided ki nahi, this is the high time when we should approach to the another level, and this is the time when we should go beyond the monarchy and we should try to make a revolution. What they did, वहाँ से निकल करके उन लोगों ने कहा कि हमारा जो वोट काउंट है आप उसको बढ़ाइए. लेकिन जब किंग ने और क्लर्जी और नोबिलिटी ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया, सो वहाँ से दे वेंट टू द टेनिस कोर्ट. टेनिस कोर्ट वहाँ पे एक जगह थी विच वाज अ बिग हॉल. तो अब ये जो लोग थे, जो आपके थर्ड स्टेट के थे, ये उस हॉल में जा कर के इकट्ठा हुए. ठीक है, यहाँ पे जब आप अपना पैराग्राफ पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो देयर टू नेम्स आर मेंशन्ड, मिराबियो एंड एबिसियस. मिराबियो एंड एबिसियस, they were belonging to, Mirabeau was from a noble family and Abyssus was from the clergy. ठीक है, so they were the people who were actually favoring the third state demands. They felt that somewhere in France society these people are being suppressed since very long, and they have tried to bring them into a new phase of life where they also can enjoy the freedom and liberty as they were enjoying since very back very long time. ठीक है, तो ये जो दो नाम थे, इन्होंने क्या किया, they have also introduced themselves into the जो रेवोल्यूशन स्टार्ट होने वाला था उसमें इन लोगों ने खुद को एनरोल कर लिया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फॉल ऑफ द बेस्टाइल. राइट, सो जब people were accumulated in tennis court, they were discussing that we should make now national assembly, we should work on some other areas. अभी हमको ये जो फंक्शन है गवर्नमेंट का उसको ब्रेक करना है. इसी बीच में क्या हुआ, the common man, they were already facing from the scarcity of food, जहाँ पे उनका सब्सिस्टेंस क्राइसिस को वो फेस कर रहे थे. In between, what they did, they attacked on the Bastille fort. अभी Bastille क्या था, Bastille was a fort जो कि जहाँ पे कि जो कैदी हुआ करते थे उनको रखा जाता था. मोर देन दैट, बेस्टाइल वॉज एक्चुअली अ सेंस ऑफ डेस्पोटिक फिगर. डेस्पोटिक फिगर क्या होता है, समथिंग विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, अ स्ट्रॉन्ग फेस ऑफ द किंग. तो बेस्टाइल फोर्ट पे ये लोग गए, वहाँ पे इन्होंने कमांडर को किल कर दिया. जो वहाँ पे जो इम्प्रिजन थे, जो प्रिजनर्स थे, उनको इम्प्रिजन कर दिया, उनको बाहर निकाल लिया. और इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि जो फोर्ट था, जो फोर्ट का फेस था, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, जो राजा की स्ट्रेंथ को शो करता था, उसको इन लोगों ने, कॉमन मैन ने क्या किया, उसको वैनिश कर दिया. ठीक है, बेस्टाइल फोर्ट जो है उसके टूटते ही, दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ स्टॉर्म फॉर द किंग. किंग को ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो हुआ अभी हमारे साथ, ये जो फायर ऑफ रेवोल्यूशन है, नाउ दिस फायर ऑफ रेवोल्यूशन इज़ गोइंग टू वैनिश ऑल द फ्रेंच एम्पायर. ठीक है, तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मिलिट्री वहाँ पे लगा दी.
ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सारा एक तरफ चल रहा था, बेस्टाइल का मैटर अलग चल रहा था, और जो टेनिस कोर्ट में लोग इकट्ठा हुए थे, टेनिस कोर्ट में उनके अपने पॉइंट को वो डिस्कस कर रहे थे, अपनी चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ लाई जाए और कैसे ये किया जाए कि भाई जो मोनार्की है उसको पॉज दे दिया जाए एक मोनार्की को. So we are going to start with the achievement of the National Assembly. We have studied till now that first the king has called for the state assembly, जिसमें वो he wanted to increase or impose the further taxes on the third state, but unfortunately that didn't work the way king has planned it for. So now the people of the third state, they went to the tennis court and they have taken an oath that until they are not get their rights, they will not leave this place. And in between, the Bastille Fort after Bastille Fort also abolishes. So the king understood that this is not something which is going to stop here. He could sense that the long way is about to start and people are very aggressive now. They are not going to accept the force of king. So what he did, he said, okay, I'm ready with this, all with all the negotiations made with the third state. So what negotiations were actually made after making or after the creation of National Assembly? The noble voluntarily surrendered their feudal rights and privileges. Member of the clergies too had to give up their privileges. Rights to hunting and other customary service were abolished. Teeth were abolished, and lands in the owned by the church was confiscated. Consequently, the asset of at least 2 billion livres came in the hand of the government. Now what happened? जब नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, जब ये इस चीज़ को रखा गया, इस पॉइंट को कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, privileges जो हैं that has to be equally distributed, तो the king has ready on this negotiation कि okay fine, now the clergies and nobles will not enjoy any any special privileges. Everybody in France will enjoy the same sort of privilege. इसके continuation में what happened, the nobles, they have denied or they have surrendered their rights and privileges. उसके साथ साथ चर्च के पास जो प्रॉपर्टी थी, जो लैंड था, जो बहुत बड़ा लैंड था, उसको क्या किया, उसको चर्च को वापस करना पड़ा, गवर्नमेंट को. इसके साथ साथ ही जो एक टैक्स कॉमन मैन दिया करते थे चर्च को, और 10% का जो क्रॉप प्रोडक्शन उनको देना होता था चर्च को, अब उस चीज़ को भी अबॉलिश कर दिया गया. तो इस तरीके से क्या हुआ कि फ्रांस जो है उसमें नेशनल असेंबली को एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली, और इसका इम्पैक्ट जो है वो कॉमन मैन को भी बहुत ज़्यादा मिला. अब उनका भी एक अपना इम्पोर्टेंस आया. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? दैट द किंग विल बी देयर, द किंग विल बी द सुप्रीम, बट द पावर्स विल बी डेलीगेटेड टू द अदर सेक्शंस. मतलब जो राजा है वो तो रहेगा शासन में, उसके पास कुछ अधिकार रहेंगे, लेकिन पूरे अधिकार नहीं रहेंगे. अब जो अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएंगे लेजिस्लेशन में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी के पास. ठीक है. तो अब इसमें क्या हुआ कि अब नेशनल असेंबली जब फॉर्म की गई तो उसमें टोटल हुए 745 मेंबर्स, जिसमें से सम मेंबर्स वर कमिंग फ्रॉम द क्लर्जी, सम वर फ्रॉम नॉबल्स. और जो थर्ड स्टेट था उसका जो अभी तक हमने पढ़ा कि जो सबसे पढ़ा लिखा समाज था, जो लोग पढ़ लिख करके आए, जिन्होंने पैसे कमाए, अब वो क्या हुए, वो इसके मेंबर बने, उन्होंने अप्रोच किया. ठीक है. तो अब इसमें ये कहा गया कि नॉट all the people will get the advantage to be or to register themselves in the national assembly. हर किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो नेशनल असेंबली में आए. वो कौन लोग थे? जिनकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा हो, प्लस वो लोग जो अपने 3 दिन का जो लोग अपना कंट्रीब्यूशन मीन्स 3 पीपल के वेजेस के बराबर का अमाउंट वो एज अ टैक्स अगर पे कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, नेशनल असेंबली में आ सकते हैं. ओके. सो अब तक हमने देखा कि ये इस तरीके से हुआ, जिसमें से 2 कैटेगरी हुई, एक हुआ एक्टिव सिटीज़न का, एक हुआ पैसिव सिटीज़न का. तो एक्टिव सिटीज़न कौन हुए? ये वो लोग हुए जो कि 25 ईयर्स से ज़्यादा की एज हो और
जिनका टैक्स पेइंग इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज हो वर अकॉर्ड द स्टेट ऑफ एक्टिव सिटीजन। ये लोग आए इस एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में। इसी के साथ साथ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, एक और चीज़ को डिक्लेयर किया गया विच वॉज द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बात हो रही है विच इज़ टोटली एम्फेसाइजिंग ऑन मैन एंड सिटीजन, नॉट विमेन। ठीक है, सो हियर यू कैन से there are a lot of rights mentioned, such as the declaration of the right of man and citizen. Next one is men are born free and equal in rights. Second, the sovereignty resides in the people. Third, that law the expression of general will. Fourth, no man can be accused, arrested or detained except in cases determined by the law. तो उसी के साथ साथ ये बहुत सारी राइट्स और लोगों को मिलना शुरू हो गई, एंजॉय होना शुरू हो गया। आफ्टर अ सर्टन स्पैन ऑफ टाइम देयर वाज अनदर सीन जो कि प्लान कर रहे थे किंग। वो क्या था? नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी है, फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। सी, द किंग इज ऑलवेज अ किंग, अंडरस्टैंड नो? अभी तक किंग के पास बहुत सारे राइट्स थे। ही वॉज द सुप्रीम ऑफ द कंट्री, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ lavish लाइफ ही वॉज लिविंग इन, and a lot of authorities were given to him. अब क्या हुआ? After making a constitutional monarchy, he was working as a puppet. The authorities were given to the other institutions, but the king was there just to show his face, but no rights were given to him. तो कहीं ना कहीं द किंग वॉज प्लानिंग कि सी, आई रियली नीड टू रिस्टोर ऑल माई राइट्स एंड अथॉरिटीज़। उसके लिए उन्होंने क्या किया? ही अप्रोच टू द नेबरिंग कंट्रीज़। वो नेबरिंग कंट्रीज़ ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, सेवॉय, जिसको हम इटली बोलते हैं, प्रूशिया जिसको अभी हम जर्मनी कहते हैं, ये उन कंट्रीज़ के जो बाकी राजा थे, क्योंकि जो मोनार्की थी, मोनार्की बहुत सारी कंट्रीज़ में थी। ठीक है, तो जब आस पड़ोस के जो आपके किंग और उन लोगों ने जब ये सुना दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग इन फ्रांस, तो उनको भी ये लगा कि वी रियली नीड टू हेल्प फ्रांस किंग, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच माइट हैपन टू आवर ओन कंट्री। यू नो, एनी मोमेंट द पीपल कैन गेट एनलाइटेंड, और उनको ये हो सकता है कि हमारे राजा भी हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, तो दे हैव प्लान टू सपोर्ट फ्रांस के किंग को। तो अभी जो बाकी के राजा थे, जो नेबरिंग किंग थे, दे हैव प्लान टू अटैक ऑन नेशनल असेंबली। लेकिन हुआ क्या? नेशनल असेंबली सेंस इट बिफोर, मतलब नेशनल असेंबली को ये बात पहले पता चल गई कि जो किंग हैं वो बाहर से ट्रूप बुलवा रहे हैं, बाहर से वो सेना बुलवा रहे हैं और एक वॉर क्रिएट कराना चाह रहे हैं, एक वॉर को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं फ्रांस में, ताकि हम जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई है वो वैनिश हो जाए, वो अबॉलिश हो जाए। लेकिन नेशनल असेंबली ने क्या किया? उन्होंने इन कंट्रीज़ पे पहले ही अटैक कर दिया। ठीक है, इन कंट्रीज़ पे पहले ही अटैक कर दिया गया। यहाँ पे एक लाइन आप और पढ़ेंगे जिसमें जो बहुत सारे कॉमन लोग थे, उन्होंने सेंस ऑफ नेशनैलिटी, पेट्रियाटिज़म को से इंस्पायर होकर के उन लोगों ने आर्मी में खुद को एनरोल कराया कि नहीं, हम अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं। ये सारा कुछ हुआ। ठीक है, तो अब एक जगह थी मार्सलीज। मार्सलीज में जो पोइट थे रॉगिक डेलेस, उन्होंने एक बहुत प्यारी सी पोइट्री लिखी थी जो कि पेट्रोटिज्म पे बेस्ड थी। और इसी पोइट्री को द पीपल हु मेड द आर्मी, दे संग द पोएम, एंड व्हेन दे वर पासिंग थ्रू मार्सलीज। मार्सलीज एक जगह है जहाँ पर कि इस पोइट्री को वो गा रहे थे, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है मार्सलीज। ठीक है, अभी जो है ये मार्सलीज इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो ये भी एक इंसिडेंस हुआ जहाँ पर कि लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए पेट्रोटिज्म से। दे वर रेडी टू डाई फॉर देयर कंट्री, एंड दे वर रेडी फॉर टू डाई फॉर द रेवोल्यूशनरी चेंजेस एंड टू मेक देयर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल एंड बेनिफिटेड एंड प्रिविलेज्ड। ओके, सो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे चल रही थी। सो अब जो कॉमन पीपल थे, उन्होंने एक तरीके का रिवॉल्ट बना दिया, एक तरीके का वॉर हो गया, आपने अब तक देखा। उसके बाद जो दूसरी कंट्री के किंग थे, उनको एक सेंस ऑफ सिंपथी थी फ्रांस के किंग के साथ, तो उन्होंने प्लान किया कि वो अटैक करेंगे। लेकिन द होल प्लान वाज टर्न्ड ऑपोजिट। उसके पहले ही द पीपल ऑफ द नेशनल असेंबली, दे टर्न बैक, दे अनाउंस्ड अ वॉर टू दोज कंट्रीज़, एंड उस वॉर को उन्होंने जीता भी।
इन बिटवीन जो किंग एंड क्वीन थे उनको प्रिजनर के जैसे उनके अपने पैलेस में रख दिया गया था, लेकिन they have got a chance to run from there and they have tried to leave that particular palace, लेकिन unfortunately when they were on to their way they've again caught back and उनको वापस से imprison कर दिया गया, उनको वापस से ले आकर के महल में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये तक यहाँ तक अभी हमने पढ़ा। फिर एक हेडिंग आपकी आती है नेशनल कन्वेंशन। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्टेट असेंबली हुआ करती थी एंड आफ्टर दैट नेशनल असेंबली फॉर्म हुई। नाउ दैट नेशनल असेंबली टर्न्ड इनटू द नेशनल कन्वेंशन। ठीक, सो नेशनल कन्वेंशन वाज एक्चुअली देयर वर जो बहुत सारे राइट्स और अथॉरिटीज़ की आपसे भी बात हो रही थी, उसमें there it was also a new sort of rule passed by the government that people have a liberty to create their own political groups। तो अब ये जो अधिकार लोगों को मिला कि वो अपने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स को फॉर्म कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसी से जो एक जैकोबियन थे, एक जैकोबियंस का ग्रुप बना। ये जैकोबियंस क्या थे, जनरली दिस नेम वाज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। ये एक सेंट जैकब एक चर्च था, एक कॉन्वेंट था जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया जैकोबियंस। ठीक है, जैकोबियंस जो बना, इसके जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉसपेयर। ठीक है, रॉबेस्पियर। अब ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे ये इसको लीड कर रहे थे। अब तक हम जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा दैट द लोअर सोसाइटी और द थर्ड स्टेट इट वाज इंक्लूडिंग in the formation of the National Assembly or in the formation of the philosopher understanding, इसमें वो लोग आना शुरू हो गए थे जो कि लोअर क्लास के अपर सेक्शन के लोग थे। मींस थर्ड स्टेट के वो लोग जो कि एजुकेटेड हो गए थे, जिनके पास पैसे आना शुरू हो गए थे, जो कि सोसाइटी में भी उनका भी अब नाम होना शुरू हो गया था। तो वो तो अब कहीं ना कहीं उनको अपनी पोजीशन मिल रही थी, लेकिन जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, इनका जो मोटिव था वो ये था कि थर्ड स्टेट का जो सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड सेक्शन है, जो कि स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, शू मेकर्स हैं, पेस्ट्री मेकर्स हैं, कुक हैं, वॉच मेकर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, सर्वेंट हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, इनको भी अथॉरिटी मिलनी चाहिए, इनको भी क्या होना चाहिए, इनको भी अधिकार होना चाहिए, कम से कम वोटिंग राइट्स तो इनके होने ही चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम जो है वो सेंट जैकब कॉन्वेंट के नाम पर बना और इसको जैकोबियंस ग्रुप कहा गया। इसमें जो लोग हुआ करते थे ये सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड सोसाइटी को बिलोंग करते थे और रॉबेस्पियर ने इसके फॉर्मेशन के समय पे इसमें एक ड्रेस कोड भी रखा था। उस ड्रेस कोड में दे वर वियरिंग अ लॉन्ग अ स्ट्राइप्ड पैंट विद रेड कैप। जो रेड कैप थी वो लिबर्टी को शो करती थी और इस तरीके से इन्होंने खुद को थोड़ा सोसाइटी से अलग किया। धीरे धीरे इनका जो जैकोबियंस का जो इम्पैक्ट था सोसाइटी पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि जो लोअर सेक्शन था उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और अब इनके पास भी वोटिंग अथॉरिटी थी। तो धीरे धीरे जो है क्या हुआ, वो इन्होंने एक तरीके का लॉ भी पास किया, इन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए, जिसमें अब क्या होता था कि अगर किसी ने मिस्टेक की है, किसी से गलती हुई है, तो इमीडिएट उस पर एक्शन होता था, उस पर कोर्ट केस होता था और उसके बाद उसको सेंटेंस टू डेथ दे दिया जाता था। इसी में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो किंग और क्वीन थे उनके अगेंस्ट भी जो है कंडेम कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू उनको भी उनके अगेंस्ट भी केस रन किया और फिर उन्हें सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैकोबियंस जब हम सुन रहे हैं कि वो गरीबों के लिए अच्छे से काम कर रहे थे, वो सबसे ज़्यादा जो बुरे स्तर पर जो बुरे कमज़ोर लोग थे समाज के, उनके लिए वो काम कर रहे थे, तो बुराई कहाँ पे आई, गड़बड़ी कहाँ आना शुरू हुई। ये जो पूरा पीरियड था रॉबेस्पियर का, जिसको जैकोबियन पीरियड भी कहा जाता है, इसको एक और नाम से बुलाते हैं द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, आतंक का एक समय, आतंक का एक काल। क्या हुआ इसमें, क्यों लोगों ने इसको ऐसा नाम देना शुरू किया। व्हेन थिंग वर ऑन द ट्रैक, नेशनल कन्वेंशन हुआ, लोगों को राइट्स मिलने शुरू हुए, अब जो गरीब लोग थे उनको भी अधिकार मिलने शुरू हुए। इसी बीच में
the principle of Robespierre was to bring equality in society, but that equality was not a uniform strata. It was never very, it was not soft process. The process which was adopted by Robespierre was very difficult, and that was very cruel and hard. हुआ क्या, कॉन्सेप्ट अच्छा था, इक्वालिटी लाना है, सब कुछ करना है, ये अच्छी बात थी, लेकिन जिस तरीके को उन्होंने ऑप्ट किया, वो उस तरीके ने क्या किया, सोसाइटी में एक तरह के टेरर को बर्थ दिया। एक तरह का टेरर वहाँ पे बनना शुरू हो गया, लोगों के बीच में डर आना शुरू हो गया। कैसे? किसी की भी गलती पर उसको सेंटेंस टू डेथ दे देना। इक्वालिटी लाने के लिए वो उन्होंने क्या किया कि जो ब्रेड हुआ करता था, जो कि वहाँ का भाई सबसे स्टेपल फूड हुआ करता था, उसको वो क्या करते थे कि उन्होंने कहा कि फाइन ब्रेड जो है, जो वाइट फ्लावर है, वो अमीर लोग नहीं खाएंगे। अब सब लोग क्या करेंगे, सब लोग एक जैसा ही ब्रेड खाएंगे। उसके साथ साथ द लॉज वर एनफोर्स टू मेक द पीजेंट ट्रांसपोर्ट देयर गेइंग टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट अ फिक्स्ड प्राइस। अब उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो गरीब लोग थे, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, उनको फोर्स किया कि आप अपनी जो क्रॉप है उसको शहरों में आकर के एक फिक्स्ड प्राइस पर दें। एंड देयर वर सम रिस्ट्रिक्शंस वर पुट ऑन द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एंड ऑल सिटीजन हैड टू ईट इक्वल ब्रेड, ठीक है, कहीं ताकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। एंड इट वॉज ऑल्सो लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। इक्वालिटी नॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन मोड ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। ट्रेडिशनल मॉइजर sir and madame were put away, and all the French men and women were enforced to address a citoyen and citoyenne, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जैसे ट्रेडिशनल तरीका होता है किसी को एड्रेस करने का, जैसे हमारे यहाँ मिस्टर एंड मिसेस होता है, वैसे वहाँ पे जो था उसको भी उन्होंने बदल दिया कि किसी को किसी भी तरह का स्पेशल जो है वो बोलते हैं कि प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सब लोग एकदम इक्वल रहेंगे। ये इक्वालिटी लाने के लिए उन्होंने जो काम किए वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया ऑन सोसाइटी। लोग डरे हुए थे क्योंकि उनको पता था कि अगर आप बियॉन्ड रूल जाएंगे तो आपको इमीडिएटली सेंटेंस टू डेथ दे दिया जाएगा। अच्छा, अभी डेथ, जो सेंटेंस टू डेथ दिया जाता है, यहाँ पे आप अपनी बुक में एक पिक्चर देखे होंगे, इसको कहते हैं गुइलोटिन, ठीक है। गुइलोटिन क्या होता है, एक तरह की मशीनरी होती थी जिसको लोगों को बेहेडेड करने में यूज़ किया जाता था। उनका मानना ये था कि हम हैंग टू डेथ नहीं देंगे, हम फांसी की सज़ा नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम गले को काट देंगे। तो ये क्या था, ये एक तरीके से क्रुएलिटी दिखा रहा था, ये एक तरीके से एंगर दिखा रहा था कि अगर आप बियॉन्ड गवर्नमेंट रूल जाएंगे तो आपको और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी बीच मैंने आपको बताया कि जो किंग और क्वीन थे उनके ऊपर भी केस चलाया गया और उनको भी सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया, उनको भी मार दिया गया। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जब व्हेन द रूल्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द रूल्स वर वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी अग्रेसिव, तो जो अपनी ही पार्टी के लोग होते हैं, देवर सर्टेन पीपल हु वर नॉट दे वर नॉट लाइकिंग द आइडिया ऑफ बीइंग हार्ड ऑन पीपल, और उन लोगों ने कभी अपोज करने का अगर ट्राई किया तो जो रॉबेस्पियर थे उन्होंने उन लोगों को भी जो है वो डेथ सेंटेंस दे दिया। तो इससे क्या हुआ, एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन, जिस डिससेटिस्फैक्शन को ख़त्म करने के लिए फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, वो रेवोल्यूशन अब जो यहाँ तक हम लेकर के आए कि कैसे कैसे ये रेवोल्यूशन हुआ, अब जो उसका इम्पैक्ट था, किंग से तो फुर्सत मिल गई, लेकिन अब ये दूसरा एक फेज़ आया जो कि थोड़ा और डरावना था, जो कि पहले तो फाइनेंशियल ही इतना क्राइसिस था, अब क्या था, अब लोगों में एक मेंटल टेरर भी आने लगा, उसके साथ साथ सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी आने लगे, अमीर लोगों को ग्रोथ नहीं, मतलब इक्वालिटी लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि सबको दबा दिया, लोगों को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं दी कि आप बाहर काम करो, आप इंडस्ट्री सेटअप करो, नहीं, उनका मानना ये था ज़्यादा कमाएंगे तो वो ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, और गरीब जो है वो क्योंकि कुछ अर्न नहीं कर रहा है तो वो गरीब ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, द इक्वालिटी, द सेंस ऑफ इक्वालिटी विल बी, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो slowly and gradually people have started understanding the concept of exploitation on the name of being equal, ठीक है। अब क्या हुआ, लोगों को ये समझ आने लगा कि ये इक्वालिटी वगैरह कुछ नहीं है, ये हमें एक्सप्लॉइट करने का नया नया तरीका निकाल रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद पीपल गॉट एंग्री अगेन, जैसे मैंने बताया कि लोगों का गुस्सा जब फूटता है तो वो किसी ना किसी रेवोल्यूशन में आता है। उसी रेवोल्यूशन के तहत
फिर से लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने केस किया इनके ऊपर। इन्हीं की पार्टी के भी लोग थे जिन्होंने रॉबेस्पियर के ऊपर केस किया कि भाई ये कंट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इनकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है। और फिर जो इन्होंने एक सिस्टम बनाया गुइलोटिन, जिसमें सर काट दिया जाता था, उसी के थ्रू इनको भी सेंटेंस टू डेथ दिया गया। और भाई अब ये भी क्या हो गए, इनका भी अपना स्टोरी दी एंड हो गया। ठीक है, फिर आता है द डायरेक्टरी। अब हुआ क्या कि जब ये भी चले गए, किंग ऑलरेडी नहीं था, तो अब क्या हुआ, फ्रांस में जो आर्मी थी, फ्रांस की आर्मी के जो हेड थे वो नेपोलियन बोनापार्ट थे। सबसे डेंजरस फेज़ अब फ्रांस का स्टार्ट होता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने देखा कि भाई देखो अब यहाँ पे राजा भी नहीं है, यहाँ पे और कोई असेंबलीज भी काम नहीं कर रही हैं, जो पोस्ट है वो एकदम खाली चल रही है, उसमें अब कुछ बचा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, खुद को जो है अपनी आर्मी का कंट्रोल जो है अपने हाथ में पहले से ही था, और उसी को करके इन्होंने क्या किया कि पूरी कंट्री का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और फिर एक टाइम आया जब ये खुद से राजा बन गए। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर समझ में आई हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेच दिस वीडियो, क्योंकि फिर ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इन द थर्ड पार्ट हम जो देखो बेटा, ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ये स्टोरी पार्ट यहाँ पे एंड होता है। दिस इज़ होल प्रोसेस दैट हाउ इट स्टार्टेड, देन फर्दर्स में प्रोसीडिंग्स क्या हुई, फिर कैसे हुआ, ये हमने पढ़ा। अब जो हमारा पार्ट बचेगा जहाँ पे हम वुमेन की पोजीशन देखेंगे, स्लेवरी से कैसे फ्रांस छूटता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इसके थर्ड पार्ट में। थैंक यू फॉर हियरिंग।